تبلیغ شروع ہو گئی ہے جی. لو جی تبلیغ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. تبلیغ شروع ہو گئی ہے. تبلیغ نیچے قادیانی مربی صاحب کہہ رہے ہیں زور لگاؤ تبلیغ کرو, زور لگاؤ تبلیغ کرو بھائی. اچھا قادیانیوں کو نا قبر کے اندر سوال ہوگا, سوال ہوگا تبلیغ کی تھی کہ نہیں, چندہ دیا تھا کہ نہیں, تبلیغ کی تھی کہ نہیں اور چندہ دیا تھا کہ نہیں. ہے کوئی قادیانی جناب جو آ کے تبلیغ کرے اور چندہ بھی دے؟ دونوں چیزیں, چندہ بھی دینی ہے اور تبلیغ بھی کرنی ہے, اور قبر کے دونوں سوالوں کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر قبر کے ان دو سوالوں پر عمل نہ کیا تے لتر بڑے پینے نے دنیا دے وچ تے ساڈے کولوں کھاندے ہو پے تے قبر چ جا کے فرشتیاں کولوں کھانے نے. تے تبلیغ کر لو تے چندہ دے دیو, جلدی جلدی تبلیغ کر لو بھائی, چندہ دے دو بھائی. قادیانیوں مربیو دوڑ دے آؤ, نس دے آؤ, کر لو تبلیغ. دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامرانی کا ایک ہی طریقہ ہے, چندہ دینی پڑے گی, تبلیغ کرنی پڑے گی. اگر چندہ نہ دی تو پھر بھی لتر پڑیں گے, اگر تبلیغ نہ کی تو پھر بھی لتر پڑیں گے. یہ دونوں کام لازمی ہیں. کال پاؤ بھائی, کال پاؤ قادیانیوں, رل کے پو بھائی, رل کے پو بھائی, تبلیغ کرو بھائی. اچھا جی یہ جو کتاب ہے مرزا قادیانی ان ہیرا منڈی, تبلیغ کوئی ہم بھی کر لیں تھوڑی سی تبلیغ. مرزا قادیانی کے اوپر وہی نازل ہوئی تھی نا, میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا, دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. قادیانیوں تم سے تبلیغ نہیں ہو رہی, جو کہ مفتی مبشر یہ کام کر رہے ہیں, دیکھ لو. تم سے تبلیغ کوئی نہیں ہو رہی, مفتی مبشر تمہاری تبلیغ کر رہا ہے, دنیا کے کناروں تک پہنچا رہا ہے حضرت جی کی تبلیغ کو. لو جی حضرت جی کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچ گئی ہے. یہ کتاب نویں نویں آئی ہے, تازہ تازہ آئی ہے, اور آتے ہی یہ کتاب ختم بھی ہو گئی ہے. 1000 کتاب ہم نے چھپوائی تھی اور اس کو ہم نے تقسیم کر دی ہے, اور ملک کے طول و عرض میں اس کو ہم نے پہنچا دی ہے. کل رہے ہیں ایک جناب, جی جناب, تو تبلیغ کرنی ہے بھائی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جناب, مفتی صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ بہترین جناب. مفتی صاحب میں صرف حاضر ہوا ہوں, آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں مفتی صاحب. جی جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ کتاب آپ نے جزاکم اللہ منگوائی ہے؟ خیر. میں نے تو ابھی یہ کتاب دیکھی ہے اور میں اسی لیے آیا ہوں کہ یہ کہاں سے ملے گی. ہوئے ہوئے, کدھر رہتی ہیں آپ؟ میں مفتی صاحب جیلم میں رہتا ہوں, جیلم. بلے بلے, چھوٹے مرزے کو صحیح ہم نے یہاں پہ نا صحیح نت ڈال گئی ہے. مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ کا سب سے پہلا مرکز جیلم میں بنا تھا, پتہ ہے آپ کو؟ نہیں مفتی صاحب مجھے تو یہ نہیں پتا. ہوئے آپ ماشاءاللہ علم والے بندے ہیں. نہیں یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. مرزا جی غلام قادیانی کی جو تبلیغ جب اس نے شروع کی تھی, اس کا سب سے پہلا مرکز یا سب سے پہلا مرید جیلم کا تھا. اچھا اچھا. ہاں یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ مذاق نہیں کر میری جو رہا, حقائق. اچھا مفتی صاحب میری جو پیدائش ہے نا وہ ہے چنیوٹ کی. اچھا, تو ان کا چنیوٹ کے قریب ہی ان کا سارا گند خانہ ہے نا. ہاں, تو ہم جب بچپن میں تھے نا, ہم روزانہ وہاں جاتے تھے پیشاب کرنے کے لیے.
جب ہم اسکول پڑھتے تھے نا تو اسکول سے ہم وہ پھر بچپن ہوتا ہے تو اسکول سے اکثر ہم چھٹی مارتے تھے اور ہم جاتے تھے کہ چلے وہاں پہ ذرا نا پیشاب کرائیں. تو ہم نے میں تو بچپن سے ان کو دیکھ رہا ہوں اور یقین کریں وہاں سے جب گزرتے ہیں نا ربوے کے پاس سے, انہوں نے ابھی نام چینج کر دیا, نام چینج کرنے سے چیزیں تو چینج نہیں نہ ہوتی, انہوں نے ابھی نام چینج کر کے چناب نگر کر دیا. تو وہاں سے گزرنے پہ ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے, وہی اسمیل جو یہودیوں سے اسمیل اور کسی نہیں, اور سے آپ آتی. اس کو خوشبو کہیں, خوشبو. آپ نا اصل میں حضرت مسیح موعود صاحب کی توہین کر رہے ہیں, مولوی صاحب توہین کر رہے ہیں, توہین نہیں کرنا. اچھا جی, اچھا توہین نہیں کرنی, خوشبوئیں آ رہی, خوشبوؤں کے بھپکے اٹھ رہے تھے, یہ کہتے آپ. ٹھیک ہے. اچھا اچھا تو پھر جزاکم اللہ خیر. آپ مجھے پلیز یہ بتا دیں یہ کتاب کہاں سے ملے گی, تاکہ ہم بھی نا جب کسی کے پاس جائیں تو ہمارے پاس بھی ایک اچھی کتاب, روحانی کتاب موجود ہو نا. بالکل ٹھیک. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی. ایک تو میری اسی آئی ڈی کی بایو کے اندر میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہے, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. میں بول کے بھی بتا دیتا ہوں, کوئی دوست نیچے لکھ دے میرا واٹس ایپ نمبر, یہ ہمارے دوست. آپ کا نام ٹھیک کیا ہے؟ میرا نام محمد علی. محمد علی بھائی کو نہیں پتا, اور 0324 744 8814 عاجز کا واٹس ایپ نمبر ہے. کوئی دوست نیچے لکھ دے, میری بایو کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. یہ عبید رضا بھائی کا میسج آ گیا ہے, انہوں نے میرا واٹس ایپ نمبر لکھ, اس کی تصویر لے لیں آپ, جلدی جلدی کر لو, جلدی کر لو. میں نے کاپی کر لیا جی. بلے بلے بلے, ہوں تو تبلیغ پہنچ جائے گی, حضرت جی کی تبلیغ پہنچ جائے. جزاک اللہ. اچھا یہ ہے کہ یہ کتاب جب آپ کو مل جائے تو پھر اس کو کیا کریں گے آپ؟ میں ان کی نا مختلف جگہوں پہ ابراڈس پہ جاتا رہتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں میں وہاں بھی جا کے نا یہ ان کی کتاب تھوڑی روحانیت پھیلاؤں گا انشاءاللہ. بلے, روحانیت نہیں, تبلیغ انشاءاللہ. کیونکہ وہ حضرت جی کے اوپر وہی نازل ہوئی تھی نا, میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. تو یہ کام نہ اگر آپ نے کیا تو پھر حضرت جی کی توہین ہو جائے گی. انشاءاللہ کریں گے. تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں. کے اندر حضرت جی کے روحانی مجرے, روحانی طوائفوں کو جفیاں اور روحانیت حضرت جی نے جو بکھیری ہے اس کے سارے نمونے آپ کو اس کے اندر ملیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جب جانا ہے ان کی براڈوں کے اوپر, قادیانیوں کی براڈوں کے اوپر, وہاں روحانی مجرا شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. حضرت جی یہ پٹاری یعنی کر کے مفتی صاحب ایک منٹ سنو تو صحیح, این پٹاری کھول لینی ہے تے پڑھ کے نہ سنائی جانا ہے. تے ویکھو میں کہہ رہا ہے, ویکھیو جی گل سمجھ آئیے. بالکل صحیح. یہ میرے خیال میں آپ نے روحانی خزائن کی اچھے طریقے سے تشریح کر دی. روحانی تبلیغ جی, روحانیت بالکل ٹھیک ہے. وہ اصل میں قادیانیوں سے اب جب موضوع چھیڑیں گے نا لگ پتہ جائے گا, وہ کہیں گے کہ یہ روحانی باتیں ہیں مولوی جی, روحانی باتیں ہیں. یہ جو ہیرا منڈی تھی یہ روحانی کوئی ہیرا منڈی تھی, وہاں حضرت جی وہ کوئی طوائفوں کو اور رنڈیوں کو اور خسریوں کو تبلیغ کرنے گئے تھے, تبلیغ کرنے. وہاں ہیرا منڈی میں جو جاتے تھے نا حضرت جی, وہاں مجرا لے رہے جاتے, وہ روحانی مجرا ہوتا تھا. وہ آگے سے قادیانی آپ کو یہ جواب دے, سمجھے کہ میں نے آگے سے آپ نے کیا کہنا ہے. نہیں آگے بھی تو سنو, ہاں آگے ایسے آپ نے کیا کہنا ہے. جی ہیلو, آپ نے کہنا سبحان اللہ, کیا کہنا ہے آپ, اور ساتھ ہی کہنا جزاک اللہ. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں بڑے لہر دے وچ آ کے کہنا سبحان اللہ. بالکل جزاک اللہ. کیونکہ قادیانی اکثر یہ کہتی ہے
सुबहान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। हाँ, जी जी। जज़ाक अल्लाह। मैं कुछ अर्सा पहले ना इनकी एक ब्रॉड पे गया, इनका मुरब्बी है, एक मुरब्बी मलक, वाह, ठीक है, और मलक, वो तलत माशाल्लाह, तलत मलक, हाँ जी हाँ जी जी वो जी। उसने तो खुद अब नबूवत का दावा कर दिया और उसने जमात मैं अलग बना तलत- ली है। मैंने और तलत मलक जमाते की ब्रॉड अहमदिया यानी पे, कादियानियों को उसने छोड़ दिया है और कह रहा है कि मैं अब एक नवी जमात उसने ऐलान किया है, अल्लाह वाली जमात। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उसने बकायदा जी जी। ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। वो कहता है मैंने अब चंदा को नहीं देनी है अपनी, उसकी ना वो बच्चियों की, उसकी कुड़ियों के ब्याह नहीं हो रहे थे, तो उसने कहा कि ये मिर्ज़ा मसरूर मेरी कुड़ियों के ब्याह ही नहीं करवा रहा, तो मैंने अब जमात छोड़ के तो अब नवी जमात बनाऊंगा, तो वहाँ से अपनी कुड़ियों के रिश्ते तलाश करूंगा। उसने ऑफिशियली ऐलान अच्छा कर मुफ्ती साहब अब इस ऐलान पे हमने अस्तगफिरुल्लाह कहना है या माशाअल्लाह सुभान कहना है? अल्लाह, नहीं नहीं, जज़ाक सुभान अल्लाह का, अल्लाह। नहीं ये तो फिर सही है। देखिए, आप देखे रूहानी महफिल में है, रूहानी महफिल में जब माशाअल्लाह। होंगे तो फिर जज़ाक अल्लाह और सुभान अल्लाह तो बनती है, क्या ख्याल? बिल्कुल। मैं अगर मुफ्ती और साहब, वैसे भी वो मैं अगर बात आपने कर रहा था, जज़ाक अल्लाह और सुभान अल्लाह ना कही तो फिर जी, जी। अज़ाब नाज़िल होगा आपके ऊपर, फिर मौलवी साहब अज़ाब नाज़िल होगा, ठीक है ना जी? जी जी ठीक। हाँ, अगर आप चाहते मैं हैं कि आपको आपके बता रहा ऊपर था कि अज़ाब मैं- नाज़िल ना हो तो इन रूहानी बातों के ऊपर जज़ाक अल्लाह और सुभान अल्लाह ज़रूर कहें, छल लानी चाहिए, जी, जी। सुभान अल्लाह, जज़ाक। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, अल्लाह। मैं आपका भी आपको बता जज़ाक रहा अल्लाह और था सुभान मुफ्ती अल्लाह, साहब, नीचे कलर बड़े जज़ाक- आ गए जी। एक मिनट, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा था करें जी, करें, कि मैं लाज़मी करें। ना उनकी ब्रॉड पे बैठा था, तो वो ना तबलीग कर रहे थे, यानी कि मिर्ज़ा साहब की सुन्नत अदा ये कर रहे असरार साहब का यानी मुरब्बी साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि दल्ला और हरामी, ये असल में वो आपको पता है किसको कह रहे हैं? थे। ये वो मिर्ज़ा साहब की सिफात है ना, हाँ, मिर्ज़ा साहब, ये मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा साहब के, मिर्ज़ा साहब, ये मिर्ज़ा साहब की रूहानी बात है। ये असल में मेरी जो किताब आई थी मिर्ज़ा का यानी चूड़ा, उसके अंदर भी ये पूरा रिसाला लगा हुआ है। हाँ हाँ जी, ये मेरे रिसालों के नाम है, माशाअल्लाह मेरी माशाअल्लाह किताबों के नाम माशाअल्लाह पढ़ पढ़ के आपको सुना रहे हैं ये कादियानी मुरब्बी साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जी जी, ये तबलीग, अच्छा, तबलीग। तो मैं उधर बैठा था, तो ये ना इनके मुरब्बी साहब सुन्नत अदा कर रहे थे मिर्ज़ा साहब की। अल्लाह एक खुसरा था और वो बड़े जनाब अच्छे तरीके से तबलीग कर रहा था, वहाँ पे डांस कर रहा था। ओहो, अच्छा, मुझे खुसरे से मुजरा याद कर आ रहा गया, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आपको पता है कौन सा यूट्यूब चैनल है? जी मुफ्ती साहब, वो भी बता दें, दूसरे लोगों को भी पता चल जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही हम वहाँ भी पहुँचे। जी जी बता दें। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ फैज नहीं लेना चाहते, ਤੁਸੀਂ नहीं। मुफ्ती अच्छा, चैनल का नाम है ख़त्म नबूवत टाइम्स, यूट्यूब का चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स। मेरी इसी बायो के अंदर उसका लिंक मौजूद है, उस चैनल पर आपने जाना है। अभी थोड़ी देर पहले, ये जी, जी। 36 मिनट पहले एक जी, जी। वीडियो अपलोड की है जिसका टाइटल है मिर्ज़ा कादियानी का खुसरों का डांस देखना, जी जी बिल्कुल, है कि नहीं? उसके अंदर हमने बिल्कुल, दलाइल बिल्कुल। दिए हैं कि मिर्ज़ा कादियानी खुसरों के डांस देखा करता था। तो वो खुसरों से आप मुझे याद आ गया कि हज़रत जी का खुसरों के साथ बड़ा लेन देन था, और बल्कि जमात जब इन्होंने बनाई थी ना, जमात अहमदिया, तो इब्तदा में खुसरों को अपना मुरीद किया था इन्होंने, तो बड़े खुसरे इनके मुरीद हुए थे। मुफ्ती साहब ये ज़रा अगर आप इजाज़त दें मैं प्ले करूं। ये क्या ये है? देखिए नहीं, जरा कोई- ब्रॉड नहीं, किसकी कुछ है? नहीं, कुछ प्लेश नहीं करना, नहीं, इतनी जी जी, ये मलक साहब, और नहीं कैमरा ये मलक साहब की ब्रॉड है। और जी नहीं जी मैं किसी कर की रहा हूं, ब्रांड मैं ना कर रहा शेयर करो, नहीं करी दी वो की कर रहा, तू तो हूं। तबलीग बोल ये रहा है। बंद कर मेरी दिया। मेरी ब्रांड के ऊपर इन चीज़ों को अलाउ नहीं मैं करता, किसी की ब्रांड जी, का जी, जी। कोई जिक्र नहीं,
यहाँ पे सिर्फ सही है। हमारी बात होनी है या हजरत मिर्जा साहब की बात, और कोई गल नहीं बिल्कुल। कोई। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि मैं इनकी ब्रॉड पे गया, ये तबलीग कर रहे थे इस अच्छा। तरीके से, तो मैंने नीचे लिख दिया, मैंने कहा जी ये मिर्ज़ा साहब की सुन्नत अदा हो रही है, हाँ, तो भाई साहब ने मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। ओहो। अच्छा, ये एक कादियानी मुरब्बी साहब कह रहे हैं कि ये अदनान अदनान अदना 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 खादम अदना खादिम। खादम साहब कह रहे हैं मुफ्ती साहब जरा भूख के दिखाएं। बल्ले बल्ले भाई बल्ले, बल्ले भाई बल्ले। ये ना मैनू ना ऐसा भौंका भौंकी तो याद आया है, जरा एक मिनट, जरा मैं पटारी खोलना जरा, ए पटारी जरा खोल लेन दिया जे। बल्ले भाई बल्ले, ये मेरी किताब है मिर्जा कादियानी चूड़ा, इसके अंदर वो जो भौंक के दिखाया है ना हजरत मिर्जा मसीह मऊद साहब ने, ये सारा इसके अंदर जिक्र मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह भी कहते हैं, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मिर्जा साहब कहा करते थे औ औ औ औ, ये मिर्जा साहब कहा करते थे आपके सुभान मिर्जा अल्लाह, साहब। माशाअल्लाह। मिर्जा साहब अपने आप को जज़ाकल्लाह, कहते थे जज़ाकल्लाह। कि मैं कुत्ती दा बच्चा है, और मिर्जा साहब कहा करते थे मैं दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता हूँ। हाँ, दलील इधर मौजूद है। हुण तुहानूं मैं थोड़ी कुत्तिया कुत्ती करा है मुफ्ती साहब के दिखाएं। ये देखो जी, ये देखो असल किताबों के स्कैन, मलफूजाते हजरत मसीह मऊद, जिल्द नहम है, सफ़ा 23 सफ़ा 24 ते उत्थे वेख लिया जे हजरत मसीह मऊसा किंज भौंकदे ने पे, वेखो जाके। मजमुआ इश्तिहारात जिल्द दोम सफ़ा 519, वेखो जरा मिर्जा जी दियां भौंकनियां वेखिया जे। और रूहानी खुदायन जिल्द 4 सफ़ा 434, आसमानी फैसला, आसमानी असल किताब दा स्कैन। मिर्जा कादियानी कहता है, फारसी में कहता है घर सगे नफ्से दनीरा परवरेम, आज सगाने कूचाए हा कूचाए हा हम कम तरेम। उसका तर्जमा भी ये ऊपरी लाइन में लिखा हुआ है, ऊपर की लाइन में वो कहता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता हूँ जो सबसे बेहतरीन भौंकता हूँ। कुत्तिया कुत्ती होई जे कह रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा यार अली भाई नीचे ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत टाइम लिया आपका, बहुत टाइम लिया, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अगले कॉलर को मैं उठाने लगा हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ, तबलीग कर लो भाई, कादियानियों जल्दी जल्दी आ जाओ ते तबलीग करके रखो। असरार साहब तशरीफ ला रहे हैं जी। असरार साहब, मुरब्बी साहब, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद तशरीफ लाए आप सुनाओ। अब बेहतरीन। अच्छा, ये मैं अभी जिक्र कर रहा था मिर्जा जी का हीरा मंडी, हीरा मंडी में मिर्जा। अच्छा, तबीयत खराब है, तबीयत खराब सही हो जाती है अभी। मैं तबीयत खराब है आपकी, तबीयत सही करता हूँ आपकी। बात बता दो, सिर्फ दवाई भी दूंगा, दम मुझे एक बात बता दो अभी दम कि आपको किसने इख्तियार दिया कि किसको मुस्लिम कहना और किसको गैर मुस्लिम कहना? क्या लेने जाते थे हीरा मंडी में मिर्जा जी, क्या लेने जाते थे? आपसे सवाल है मेरा। मैं बात बताऊं एक आपको। हाँ, बताए। जब एक बंदा खुद को मुसलमान कहता है तो आपको क्या गैर मुस्लिम के खिलाफ गलत बयानी करे? आपको किसने इख्तियार दिया? आइन और कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक कहाँ लिखा कि आप किसी को बुरा भला कहें उसकी जमात को? काफिर का है कोई? मिर्जा साहब को काफिर का है? मैं तो कह रहा हूँ कि हीरा मंडी में ये मुसलमान साहब क्या लेने जाते थे? ये मुसलमान है ना आपके नजदीक मिर्जा कादियानी, तो मिर्जा कादियानी ये जो मुसलमान था, ये हीरा मंडी में क्या लेने जाता था? मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ। आप ले गए जी। नहीं, आप वही गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बयानी नहीं जाते थे मिर्जा साहब, नहीं जाते थे, ये मुसलमान नहीं जाता था हीरा मंडी। करते हैं इनकार आप? यार ये आप
कितनी देर इनकार से इस कर तरह रहे का हैं, चूरन बेच रहे इनकार हैं? कर रहे हैं, आप इनकार कर रहे हैं, करें इनकार, हाँ तो करते हैं हम। क्या कि क्या आप बकवास कर रहे हैं, उस बात से हम क्या इनकार क्या करते हैं। इनकार करते हैं कि मिर्जा कादियानी हीरा मंडी नहीं जाता था? यार वो मैं फिर आपको गलत बात करूंगा तो फिर आपको लगेगा बुरा। बताए ना आप, हाँ या ना तो करिए कि नहीं जाता था। वो शायद आपकी बहन के पास जाता हो। तो चलो चलो ठीक है, मेरी बहन के पास जाता था कि नहीं? अब निकल गए आप, हैं? निकल गए हैं, ये है तरीका। मतलब ये कि मेरी बहन हो या तुम्हारी बहन हो तो वो मिर्जा कादियानी की तो गैर महरम ही लगी ना। तो वो मतलब मिर्जा कादियानी गैर महरम औरतों के पास हीरा मंडी में जाता था, वो किसी की तो बहन बेटी थी ना, और लखी तवाइफ जिसके कोठे पे मिर्जा कादियानी जाता था। तो अब दौड़ गए हो, दौड़े क्यों हैं? अच्छा जी, अगले कॉलर को उठाते हैं जी। एक मुरब्बी साहब तो आए, तबलीग करके दौड़ भी गए। सईद साहब को मैं उठा रहा हूँ। सईद साहब तशरीफ ला रहे हैं, तुर गए हैं, आके तुर भी गए हैं सईद साहब। अच्छा जी, अगले कॉलर को उठाते हैं जी। बाब साहब आ रहे हैं जी। जनाब अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, मंजी ठोक के रखी हुई है कादियानियों की, ठीक ही है, ठोक के नहीं रखे। नहीं, रूहानियत भाई, रूहानी तबलीग हाँ। ऐसे गलत लफ्ज़ अच्छा, ना बोलो। मंजी अच्छा नहीं मुफ्ती साहब, ये बात बताएं तबलीग हो कि रही। अच्छी बात है। आपको अच्छी पता अच्छी है बातें कि करे, अच्छी अच्छी बातें। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि आपको पता है कि मेरा अपना चैनल होता है, मैं उस पर ये जितने ग्रोह हैं, बातल ग्रोह, इनको बेनकाब कर रहा हूँ। तो आप जैसे जो है टिकटॉक पर दीगर जो है उलमाए अहले सुन्नत, मैं उनको भी ले रहा हूँ। तो कल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने इस्तिखारा के मुतल्लिक़ प्रोग्राम किया था। आपको पता है कि ये लोगों को अक्सर ये कहते हैं कि जी जाएं जी, आप मिर्ज़ा साहब के बारे में इस्तिखारा कर लें जी, गौर शाही साहब के बारे में इस्तिखारा कर लें जी। और लोग बेचारे जो है इल्म ना होने की बुनियाद पर जो है वो इस्तिखारा करके जब वो आ जाता है तो वो बेवकूफ़ी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इसके ज़हन में हमने कल एक प्रोग्राम किया था। तो आपके तरफ से हमारे पास 2 मेहमान थे, हमारे बरादरान अहले सुन्नत भी हमारे साथ। मैं चाहता हूँ कि क्या आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं? नहीं, क्या जी, नहीं, मैं किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं होता। मेरा अपने प्रोग्राम खत्म नहीं होता तो किसी के प्रोग्राम में कैसे शामिल हो जाऊं जी? मेरे अपने प्रोग्राम बड़े लंबे चौड़े प्रोग्राम है। आप पहले तो आपको याद है ना, मेरे पास प्रोग्राम आते खत्म रहे, होगा तो आपको मैं याद है आपके ना? प्रोग्राम में शिरकत करूँ। नहीं, आपको याद रहा मेरे प्रोग्राम में आते रहे, आपको याद नहीं, होगा। मैं तो कभी किसी प्रोग्राम में शरीक ही नहीं हुआ जनाब। क्या ना इस तरह ना करे ना, जरा मेरी आईडी को जरा मैंने देखिए ना, आज फिर दोबारा आपको पहली देखें। दफा ही शायद देखा है। नहीं तो नहीं, आपने ना पहली मैनू दफा नहीं अपने देखा। प्रोग्राम च ना शामिल करो तुसी धक्के नाल ही। नहीं सर, इस तरह ना करे। आप आते रहे, मेरे पास बैठते रहे, मेरे टिकटॉक नहीं पर हुण तुसी मैं अपनी बैठता नप हूँ। के रखनी हो, तुहाडी अपनी मर्जी है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे मैंने तो कह दिया कि मैं किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करता। और हाँ जी, चलिए, वो तो अफजल आपकी अपनी मर्जी है ना, आप आए या ना आए। ये ना कहें कि आप आते नहीं थे, आप मेरे साथ बैठते रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। अच्छा, ये हजरत मिर्जा साहब हीरा मंडी में जाते थे और जाके जनाब ये एक सवाल किया है मैंने, अभी तक जवाब वैसे ना ही कादियानियों की तरफ से आया है, ना ही मुसलमानों की तरफ से, तो ना ही किसी की तरफ से आया ही नहीं है। तो आप मुझे कोई साहिब इल्म लग रहे हैं, तो कोई बताइए, हीरा मंडी में हजरत जी जाते थे तो क्या करने जाते थे हजरत जी? हजरत देखिए, मसीह मौद साहब। पहली बात तो यह है कि मैं, आपने जो बात की जरा, आपकी अपनी तहकीक है, आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं। हाँ। अगर वो जाती थी तो वो लानती हैं, उन पर लानत करनी चाहिए। और उससे बड़ा कैसे सबसे लानत कैसे करनी चाहिए? मतलब एक बंदा हीरा मंडी में गया है तो उसके सिर्फ हीरा मंडी में जाने की वजह से आप लानत कर रहे हैं? ये नहीं नहीं, हम बात खाली नहीं है। खाली हीरा मंडी की वजह से नहीं कर रहे। उसने जो सबसे बड़ा दुनिया में फितना फैलाया है, एक तो इस फितने की बुनियाद पर, एक उसने नहीं, अभी खत्म तक नबूवत किसी का। फितने की बात ही नहीं ना कर रहे, आप बात कहीं और लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बात किसी और क्या, जगह अभी पर नहीं तो- लेके अभी तो जा रहा। किसी फितने की बात नहीं, अभी तो सिर्फ हीरा मंडी के फजाइलो बरकात पर बात कर रहे हैं।
हाँ नहीं वो ठीक आप मतलब कह हीरा रहे हैं। मंडी में एक बंदा गया है और मुसलमान है, अभी एक कादियानी आया था, वो कह रहा था वो मुसलमान है और मुसलमान को तुम कह रहे हो, तो वो चलो जी मान लेते हैं जी मिर्जा कादियानी मुसलमान था, लेकिन वो मुसलमान पहुंच गया हीरा मंडी। जी तो सवाल ये था कि वो मुसलमान जो हीरा मंडी पहुंचा है मिर्जा गुलाम कादियानी, वो तो लेने क्या गया था। हालांकि ये देखिए कि मैंने अपनी किताब के अंदर भी ये हवाला लगाया है, तारीख अहमदियत जिल्द अव्वल है, सफ़ा 454 है, ये असल स्कैन मौजूद है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी मसीह मऊद जनवरी 1892 के तीसरे हफ्ते में लाहौर वालों पर इत्माम हुज्जत के लिए सफ़र लाहौर इख्तियार फरमाया। हजूर लाहौर स्टेशन से क़यामगाह तक यके पर सवार होकर पहुंचे। इब्तिदान पहले मिर्ज़ा कादियानी जब लाहौर आए ना, तो इब्तिदान हजूर ने मुंशी मीरा बख्श साहब म्यूनसिपल कमिश्नर लाहौर की कोठी वाक़े चूना मंडी में क़याम फरमाया। जब लाहौर मिर्ज़ा कादियानी पहली दफ़ा आया था ना, तो आके अपना उसका मुरीद था मुंशी मीरा बख्श, अच्छा मुंशी मीरा बख्श की कोठी के ऊपर गया है, ठीक जो कि चूना मंडी में है। ठीक है ना ठीक है जी। तो आगे लिखा है कि लेकिन जब वो जगह काफी ना रही तो आप महबूब राइयों के मकान वाक़े हीरा मंडी में तशरीफ ले गए। सही अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है कि मिर्ज़े कादियानी को मीरा बख्श की कोठी पर चैन नहीं आया, जो कि लखी तवाइफ के कोठे वाक़े हीरा मंडी में चला गया। भाई ये एक मासूम सा सवाल है कि आखिर वो लेने अच्छा क्या गया सवाल था, उस अच्छा कोठी सवाल है। से उठ के कोठे तक का जो सफर है क्यों इख्तियार किया, बस ये सवाल है जी। अच्छा सवाल आपने किया है, तो इसका जवाब तो मिर्जा साहब के फॉलोअर्स को हक बनता दें आके आपको कि वो क्या लेने गए थे। ये आपको नहीं बिल्कुल उनको पता। नहीं, मैंने किसी इसके बारे में जानता नहीं, अगर वो गया जैसे आपकी तहकीक आपके पास मौजूद है वो नहीं, गया है, मैंने तो हवाला भी दिखाया ना। हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो तवाइफों के कोठे पर क्या लेने गया था। अब इसके दो ही हाल हो मौजूदगी सकते के हैं। अंदर ही हम आप भी नीचे बैठ के सुनिएगा, कोई कादियानी हो सकता है और ये आपका सवाल हम उससे करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक, जज़ाक अल्लाह जी। आप हमारे साथ साथ रहा करें और फॉलो किया करें, और अगले दोस्तों को हम अब कॉल पे उठाते हैं। कोई मैं ना कोई तत्ता कादियानी आए ते कोई तबलीग करे। MR साहब तशरीफ ला रहे हैं जी, MRB साहब जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर अपना एक तो मुझे ये कादियानियत के बारे में पता भी नहीं है और दूसरा कोई मालूमात भी नहीं है इनके बारे में। अभी आपको मैंने तारुफ करवाया तो है किसका? कादियानियत। जी मैं बस अपना ये कंट्रोवर्शियल ब्रॉड सुनता रहता हूँ इनकी, लेकिन वल्लाह बखुदा इनके बारे में मुझे कोई इतनी खास मालूमात है नहीं। अभी मैंने मालूमात दी तो है, अभी आप कह रहे हैं मुझे मालूमात नहीं है। मालूमात दी तो है। वो तो जो आपने बयान किया ना सर, मैंने कहा ये तो आपने बयान कर दिया, मजीद मैंने इनके बारे में ना को पढ़ा ना मजीद नहीं जानना। नहीं नहीं, ओहो अच्छा अच्छा, सवाल क्या सर मजीद तो नहीं ना जानते। हीरा मंडी, हीरा मंडी हो, लखी तवाइफ हो, मुजरा हो, साजो मौसीकी चल रही हो, तफले की थाप हो, साथ टानक वाइन की बोतल हो, इधर एक पोर्ट वाइन की बोतल पड़ी हो, साथ ही पीछे एक मुंशी हकीम नूरुद्दीन खड़ा हो, जो कि जनाब कोको वाइन के डाले लेके खड़ा हो, ते जनाब मस्ती हो आंखों में, आंखें लाल सुई हो, और साथ चूड़ी पजामा खुद भी पहना हो, और जनाब गरारा भी पहना हो, और पोली पोली बुलियां से सुर्खी भी लाई हो। सही। ये ऐसी महफल के बाद कोई और तारुफ की जरूरत पड़ती है कि भाई मजीद तारुफ करवाओ हमें, कादियानियत क्या है। ये अपना दीन को लीड करने वाले रहनुमा के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, हजरत मिर्जा साहब जी दीन को उन्होंने लीड किया। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम था हजरत जी का, और बड़ी महान शख्सियत थे हजरत जी, मुजरे के बड़े शौकीन थे, बड़े शौकीन। इन हरकतों से लगता तो नहीं है जी बड़ी महान। नहीं, आप देखे तौहीन ना करें। MRB भाई, मोहम्मद ये रिजवान हरकतें रूहानी हरकतें हैं।
रूहानी हरकतों को आप जिस्मानी हरकतें ना कहें। जी जी, वो फिर अल्लाह इनको तौफीक दे जी मजीद रूहानी हरकतें करने की। हाँ नहीं वो ये करते ही हैं, ये आज तक देखे ना, मिर्जा मसरूर साहब भी कर रहे हैं, मिर्जा मसरूर साहब भी कर रहे हैं, इनके सारे खलीफे लगे हुए हैं ये हरकतें करने रूहानी। ओहो, और कादियानी भी अपनी बराडों के बैठ के 24 घंटे ये रूहानी हरकतें करते हैं, जो इनके मुजरे चल रहे होते हैं। बहुत जो ही ये कोई कंट्रोवर्शियल इमाम है जी इनका। नहीं ये बड़ी महान थे। आप लगता है पहली दफा तशरीफ लाए हैं, आप हमें फॉलो कर लें और हमारी बराडों पे आते जाते रहा करें। MRB भाई, मोहम्मद रिजवान भट्ट। अच्छा मोहम्मद रिजवान भट्ट भाई, रिजवान भट्ट भाई आप आते जाते रहा करें, आप अच्छे इंसान हैं। ठीक है, ठीक है। तो मजीद कादियानियत के बारे में आपको इल्म हासिल करना है, ये ना कहा करें मुझे नहीं जानना। क्यों नहीं जानना जी? मैंने जानना ठीक नहीं, है? मैंने कहा आपके जानता ईमान नहीं। दीन का मसला है, आपकी आल औलाद का मसला है, आपके रिश्तेदारों का मसला है, जो कि इस चुंगल के अंदर फंस रहे हैं, और आप ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते मुझे नहीं जी इनके बारे में। क्यों नहीं जानना जी? जानना चाहिए, जानना चाहिए कि ये क्या है, कौन है ये लोग। ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप बड़े प्यार वाले हैं, बड़े प्यारे हैं। अच्छा जी, अगले कॉलर को मैं उठा रहा हूँ। उबैद भाई कॉल तो आई है, गैब हो गए। अच्छा जी, मोहम्मद, ये कौन है? मोहम्मद सुहेल है। अच्छा सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है मुफ्ती साहब जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुहेल अपने भाई, मुझे लग रहा है कि यूट्यूब चैनल खत्म नबूवत टाइम्स पर भी आपने इसको लाइव किया हुआ है। नहीं जनाब, उधर नहीं जा रही। नहीं किया? इतनी रूहानी तबलीग और इतनी रूहानियत अब ये कैसे मिलेगी लोगों को? ये कैसे मुस्तफीज होंगे इस रूहानियत से? सारी ज़ाया हो गई है, तबलीग ज़ाया हो गई है। हाँ जी, तबलीग सुहेल भाई ज़ाया हो गई है। तबलीग ज़ाया हो जाए तो काम खराब हो जाता है। हाँ जी, तो फिर अगले कॉलर को उठाऊं फिर मैं? सही बात है। क्या आप उठाएंगे? कोई नहीं, ला कल का दिन इंशाल्लाह होगा। ये है जी जनाब, क्यों नहीं। ओ की क्या जी? अच्छा जी, अगले कॉलर को उठाने लगा हूं मैं। ओहो, नवा नवा राज और गश्ती मादा बच्चा मौलवी पैन चौथ मुसलमानदार गश्ती कुत्ती मादा बच्चा भारत जिंदाबाद पैनुलन पैन चौथ गश्ती कुत्ती मादा बच्चा तेरी बेटी दी फुद्दी विच ना मारी पैन चौथ भारत जिंदाबाद हिंदुस्तानियों जिंदाबाद पैन चौथ। कादियानी मुरब्बी साहब नवा राज साहब तशरीफ लाए, तबलीग की और तबलीग करके चले भी गए। रूहानी खजाइन खोल के रख दी है मुरब्बी साहब ने। जिंदाबाद भाई, बड़ी तबलीग की है भाई। मैं ना रूह मुअत्तर हो गई है, रूह मुअत्तर हो गई है। और जनाब इतना रूहानी दर्स दिया है कादियानी मुरब्बी नवा राज साहब ने, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अगले कॉलर को हम उठाते हैं। हसन साहब हैं, कौन है जी? जनाब हसनी साहब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, तबीयत है ठीक है आपकी? बड़ी बेहतरीन, अगे नालों बेहतरीन हो गई है। बगा जाओ हूँ मैं ढिली मट्ठी हुई सी ते शाद बाद हो गई तबीयत। मुफ्ती साहब, जिस तरह तुसी मसीह मौद अलैहिस्सलाम दी तबलीग जारी कर रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਲੀਫਾ ਅਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ नहीं खलीफा अव्वल नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਨ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ, ਹਸਨੈਨ ਅਹਿਮਦ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਖਲੀਫੇ ਖਲੂਫੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀਟ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ, ਸੀਟ ਵੱਡੀ ਦਵੋ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬਿਠਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣੋ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਐਡੇ लो मेरी वो डिमांड नहीं है, या वो की कहते ने
ਤੇ ਲੋ ख्वाहिश नहीं है अपनी ख्वाहिश को ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਹੜੀ? ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਰੂਟ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੱਜ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗਏ ਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੱਕੀ ਤਵਾਏ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਨਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ? ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿਧਰੇ? नहीं वो अदरजी दी सुन्नत है ना, तुझे क्या मैं सुन्नत है अमल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं कादी यार मोहम्मद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ अदरजी ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਂਗਲ ਠੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मतलब उस सुन्नत पे अमल किया जे कि जल्लाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार किया और हजरत मसीह साहब की मकद से 16 दिन तक खून जारी रहा। वो किधर आया तो नहीं जे काम करवाए उत्थे देखियो जे। नहीं शाह जी बस ना थोड़ा ये काम सुन्नत अदा हुई है, गुजर के आया मैं। अच्छा हुण थोड़ी जी सुन्नत ते आ गए हो तुसी, मैं तो समझा सी कोई वड्डी जी सुन्नत ते अमल करके आए। नहीं दरअसल वो जेड़ी रहनुमाई उत्थों लभड़ी वो तुहाडे कोल ले लईदी है ना। हाँ बेहतरीन हो गए। अच्छा इंज वे के कलर साडे बड़े जे ते सुनतां जड़ियां ने ना वो पूरी करांगे ते हौली हौली। अच्छा जी यह कलर साहब ने कौन ने पता नहीं, टुर गए ने। चलो जी लो जी तबलीग पूरी हो गई है, कलर भी पूरे हो गए ने। कलर रिहान कादमी साहब आए हैं जी जनाब। वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मुफ्ती साहब आप मसीह मऊद साहब की तबलीग किनारों तक पहुंचा रहे हैं, दुनिया के किनारों तक पहुंच गई है। इनको तो चाहिए कि आपको जो है ना थोड़ा सा कोई रुतबा शुतबा दे, कोई खलीफा माने। जो इतनी तबलीग कर रहे हैं, जो तबलीग ये अपनी ब्रॉडों पे नहीं करे वो आप यहाँ कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾਓ। देखे ना नीचे क्या कादियानी ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ हो? सब देखे ना आपको अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पढ़ना भी आता है, कुरान भी पढ़ लेते हैं आप, मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह कुरान, और इसके अलावा मसीह मऊद साहब की किताबें भी पढ़ लेते हैं, उनकी तबलीग भी कर रहे हैं। तो खलीफा तो फिर आपको मानना चाहिए इनको। खलीफा वक़्त मुफ्ती मुबशर शाह नाल वो भी लफ्ज़ भी बोलना देना मुफ्ती मुबशर यद्दा यल्ला जेड़ा बोलते ने मिर्जा मसरूर यद्दा यल्ला। जी बिल्कुल वो यद्दा यल्ला एक लफ्ज़ बोलते हैं लोग, बिल्कुल नसरो नतीज यद्दा यल्ला है। बिल्कुल अच्छा कमाल हो गई यार, सुभान अल्लाह। चस नहीं कोई आई, चस नहीं आई। वैसे तो मेरी बराड़ दे उत्ते बड़ी तबलीग करदे ने कादियानी, अज कोई तबलीग खास होई कोई नहीं है। मुफ्ती साहब वो मलिक तलत की ब्रॉड पे पिछले दिनों हमने सवाल किया, वो 50 और 5 वाली जो मिर्जा साहब की जो रूहानियत वाली बात है ना कि हमने 50 का चंदा लिया, तो हम तो रूहानी बात कहेंगे ना, गुस्ताखी हो जाएगी वरना। तो मैंने उसको कहा ये मिर्जा साहब ने 50 की जगह 5, वो माजरत इंटरनेट का इशू हो गया, वो मैंने कहा ये 50 की जगह 5 लिख दी और चंदा भी खा लिया। तो कहते हैं वो मिर्जा साहब जो है ना वो शुगल लगाते थे।
शुगर लगाते थे? हाँ, तलत ने कहा, मलिक तलत कहते, मिर्जा साहब शुगल लगाते थे। और मिर्जा तलत साहब जो है ना, वो आजकल खुद उन्होंने वो खलीफा बनने का ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं मिर्जा मसरूर को मैं नहीं मानता, अब मैं खुद एक जमात, अल्लाह वाली जमात बना रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं उसका लीडर हूँ और मेरी जमात के अंदर जो चंदा है वो यतीमों और मस्कीनों को दिया जाएगा, यतीमों और मस्कीनों को चंदा दिया जाएगा। तो वो इसी वजह से वो कंजरियों के साथ वो मैच लगा रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, और वो कंजरियां चंदे दे रही हैं और नीचे बैठ के चंदे दे रहे हैं मिर्जा तलत साहब को। हाँ जी, चंदे दे रहे हैं। वो कहते हैं यतीमों और मस्कीनों को चंदा है मेरी जमात। बिल्कुल ऐसी है। हाँ तो कोई नहीं, फिर कोई हिसाब किताब क्यों नहीं? अज नहीं दिहाड़ी नहीं लगी यार, की चक्कर से ना दिहाड़ी वैसे लग गई आपको? दिहाड़ी को नहीं लगी? नहीं दिहाड़ी नू की दिहाड़ी कहंदे ने, दिहाड़ी लगी को नहीं अज। मंदा ही रहा है, मंदा रहा है अज। मैं ना कोई तत्ता जा का दिया नहीं आना चाहिए, तत्ता जावा तेरी भैन दी तेरी मां को 5 7 10 15 20 इंज एक स्पीड दे नाल गालां कड्डे, फिर चस होंदी है ना दिहाड़ी। ते फिर इंज नहीं दिहाड़ी लगदी, इंज नहीं दिहाड़ी लगदी। आओ ना जरा कोई आए ते है ने, रिजवान साहब तशरीफ ले आ रहे ने जी। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम जनाबे अली, की हाल ने मेरे भरा जी? वालेकुम सलाम। नाल कौन बैठे दे ने भाई होरी है, मैनू जानदे नहीं लगदा। अच्छा जी, जी हुक्म फरमाओ जनाब। हुक्म जनाबे अली, मैं शिया जे, शियाने अली जे। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ जी, वो तो है वो, लेकिन मैं क्या कोई हजरत मसीह मऊद साहब की कोई गल सुनाओ ना, कोई रूहानी जी। हजरी मऊद साहब नू असी कोई किसी नू नहीं जानते, असी पंज दिन पाक नू जानने आ ते अल्लाह जानने। नहीं वो ते इमाम मेहदी साहब नू नहीं तुसी मनदे? मैं असी सारे नहीं मन मुन लेने आ, लेकिन पहले तो शुरू करना, पहले तो जो को मनाजरा करना, इमाम मेहदी साहब नू नहीं मनदे है तुसी? पहले तो शुरू हो, पहले तो 12 नहीं इमाम मेहदी साहब जानदे भी है, वो कौन ने इमाम मेहदी? 12। हाँ जी, हाँ जी, 12 इमाम मेहदी 12 नू 12 नू मनने। 90 याजली पाक दे बच्चे ने सब तो छोटे। होया वे याजली पाक दे बच्चे ने सब तो छोटे, या अली पाक दे सब तो छोटे बच्चे ने, बेटे ने। हाँ जी, बेटे ने। अच्छा ते ए मिर्जा कादियानी कौन? ए या अली पाक दा बच्चा है? कौन मिर्जा कादियानी? मिर्जा कादियानी नू कौन जानदा जे? ओ यार इमाम मेहदी साहब दी गल कर रहे हां मैं, ए जसीरतुल मेहदी दे विच तस्वीर भी है। जी भाजी मेरी गल कहंदा कि मैं इमाम मेहदी हां। क्या कहंदा है? हां जी, दाढ़ी ते चोरा ए देखो ए थल्ले लिखिया भी जे, ए पढ़ सकते हो की लिखिया है? हाँ जी, दाढ़ी ते चोरा वाली लग गई। पढ़ो की लिखिया है? ये कहंदा हजरत मिर्जा गुलाम मेहदी देवबंदी देव मसीह मेहदी है। कौन है? एक मिर्जा एनू तो मैं पहली बार वेखियां ना, मैं दी तस्वीरां लगी ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। इमाम मेहदी साहब ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮੇਹਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਈ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਓਏ ਇਹ ਕੋ ਭਾਜੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਜੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਉਹਦੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ ਜੇ? ਆਹੋ, ਤੇ ਯਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਣ ਲਈਓ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜੀ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਯਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 5 ਦਿਨ ਪਾਕ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਮਾਮ ਮੇਹਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਫੜਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ? ਇਮਾਮ ਮੇਹਦੀ ਸਾਹਿਬ सुनो तो सही, सुनो। अल्लाह कहता है इनके दिलों पर हमने मोहरें लगा दी। अच्छा 11वें ने कि 12वें ने? देखो ये कीड़ा बंदा है, वो मैं कीड़े बंदे ना बहस, मैं भा फिर टुर ना जावां। ਵੇਖ ਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 11ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਚਿੱਟਾ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਲੀ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਯਾ ਅਲੀ हैदर ਸੇਲ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ? बस मुफ्ती साहब ये इंटरनेट का कोई मसला चल रहा है। नारा ते ला इधर
अली हैदर अली या अली अली नाराए हैदर हैदरी नाराए हैदरी अली हैदर ਓਏ ਆ ਓਏ ਮਰਜ਼ਈਓ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤੀ यार ਸਾਹਿਬ कोई नहीं यार ਅੱਜ ਮੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਪੁੜ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੜ ਪੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ 9K साहब तशरीफ ले आ रहे हैं जी जनाब जी जनाब 9K साहब अली हैदर ਮਿਊਟ ਹਟਾਓ Hello? 9K ਸਾਹਿਬ लगता इन्हों का मूड शूड कोनी जे है वो वैसे ही बहन वास्ते आए ने चस्के चुस्के लैन मेरी बराड़ चस्के वाली नहीं है इत्थे ते आ के बस दे मार 4.5 हाँ जी अच्छा जी यार रिजवान साहब क्यों बार बार काला पा रहे हो चलो मैं काल ते चुक ही लेना तुहानू मेरा वीर तुहानू पता भी है बराड़ किस मौजू ते वे जायली पाक दा फरमान नहीं सुनिया गल सुनो गल तो सुन लो मैं तुहानू मेरी सुन लो देखो देखो मैं इंज दा बंदा नहीं है फिर मैं थल्ले लाया तुहानू ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਚਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਠੋਕੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਪਿਆ ਹਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਟੁੰਗ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 9K ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਾਲ ਠੋਕ ਛੜੀਏ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਚਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਣੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੇ ਠੰਡੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਯਾਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦਿਆਨੀ ਬੁਨ ਬੈਠੇ ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਓਏ ਆਓ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਣਗੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਯਾਰ हजरत जी का मुजरा शुरू होया तो फिर वेखी तो सही इंज खुदा चो निकल के आएंगे हजरत मिर्जा मसीह मऊ साहब का मुजरा हाँ जी मुजरा शुरू करिए फिर मुजरा शुरू हजरत जी का नहीं जनाब क्यों नहीं है हजरत साहब भी थके ने जरा हजरत जी का मुजरा शुरू करिए ते किथे सी अजे हुण इत्थे पई सी किताब जिक्रे खबीस ओ जिक्रे खबीस ते किताब पई हुंदी सी यार मुंडे किधर रख छड़ी जे जिक्रे खबीस किताबां मेरियां ना बस किसी एक जगह ते नहीं रखते हेलो हेलो आ गया जे हजरत जी का मुजरा शुरू करिए फिर हजरत मिर्जा साहब के मुजरे का वक़्त हुआ चाहता है हजरत मिर्जा जी के मुजरा शुरू होने लगा है भाई जल्दी जल्दी आ जाओ भाई जल्दी जल्दी तशरीफ से आओ भाई लो जी ये किताब है मुफ्ती सादक की जिक्र खबीस मुफ्ती सादक मिर्जा कादियानी के 313 जैली साहबियों में शामिल है और इसका राइट हैंड ये उम्मती था उसने मिर्ज़े कादियानी की शान के ऊपर ये किताब लिखी है। इसके सफ़ा नंबर 39 के ऊपर अगर हम जाते हैं ये ले जी सफ़ा 39 है और बड़ी सी हेडिंग लिखी हुई है गरारा। लो जी गरारा। आखिरी अयाम में हजूर हमेशा ऐसे पजामे पहना करते थे जो नीचे से तंग ऊपर से खुले गौ दुम तरज के होते थे। ठीक है, पजामा चूड़ी पजामा जिन्हों कहते हैं चूड़ी पजामा। लेकिन शुरू में यानी 1890 से लेके 1895 में मैंने हजूर को बाज़ दफ़ा गरारा पहने हुए भी देखा है। चमक छल्लो
नहीं चमक चलो, मारो भाई नारा मसीह मऊद चमक चलो। अच्छा जी, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੱਖੀ ਤਵਾਇਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ, ਗਰਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਟੁੰਡੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਇਹ हजूर का दायां हाथ, लो हजूर की दाईं कलाई हाथ और कोहनी के दरमियान का हिस्सा कमजोर था। फरमाया करते थे कि मैं बचपन में एक दफा गिर गया था और इस बाजू की हड्डी टूट गई थी, तब से इसमें कमजोरी है और मैं चीज पकड़ नहीं सकता। इसी वजह से मैं चाय की प्याली बाएं हाथ से उठाता हूँ। हजरत जी टुंडे था जे मसीह मऊ टुंडा ही होए। तुसी दसो टुंडा मसीह गरारा पाया, चूड़ी पजामा पाया, नाले दे नाल पूरे घर दियां चाबियां बनियां ने, उत्थे जदों ठुमका मारदा होएगा क्या सीन होएगा यार। कोई कादियानी आए आके कैमरा ऑन करके ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੁਮਕੇ ਤੇ ਝੁਮਕੇ यार एक मिनट कलर आए ने कोई ट्रू इस्लाम साहब आ रहे हैं भाई, ट्रू साहब टुर भी गए, आए हैं और टुर गए हैं, बंदे रुकते नहीं है, पता नहीं। राशिद साहब आ रहे हैं जी, राशिद साहब जी, राशिद साहब। हाँ जी, अपनी बहन का भी बताओ ना, वो नीचे क्या पहनते चलती है? बहन का भी बताऊं? हाँ जी, अपनी बहन का बताओ ना, अपनी बेगम का बताओ, अपनी बेटी का बताओ। थोड़ा खबीस ना हो तो कुत्ता कमीना बेगैरत। जी बहन का भी बताने लगा, चले गए आप, बहन का पूछा है तो बताने तो लगा। ये इसी के इसके पिछले सफे के ऊपर ये है, ओनू कुछ विंदा है, सफा 38 है, सफा 38 ओनू कुछ विंदा है। हजरत मसीह मऊद के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी लड़की बतौरे खादमा के रहा करती थी। बहन बहन आ गई है, नीम दीवानी बहन। एक दफा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहां अपने कपड़े उतार कर नंगी बैठकर नहाने लग गई बहन। हुण दसना तुसां मैं कि बहन मेरी सी कि तुहाडी सी, वो तुसां दसना, मैं नहीं दसना। वो बहन कपड़े उतार के नंगी बैठ के नहाने लग गई। वो बहन, वो नीम दीवानी बहन हजरत मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के सामने ही बैठ के, हाँ जी, बैठ के नहाने लग गई। हजरत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ रहे और साथ उसको देखते भी रहे। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तफाकन आन निकली। उसने उस लड़की को कहा कि हजरत साहब के कमरे में और मौजूदगी में और उनके सामने तुमने ये क्या हरकत की? तो उसने हंस कर जवाब दिया कि ये तो मेरा प्यारा है, आई लव यू। बहन अब बताना जरा, ये बहन मेरी थी कि तुम्हारी थी जो मिर्जा कादियानी के सामने नंगी होके बैठ के नहाने लग गई थी? बहन नी बहन। सोहेल दिहाड़ी को नहीं लगी भाई, मुफ्ती साहब कितने कादियानी बैठे हैं लेकिन डेट लगता है दिहाड़ी जी जनाब। चौधरी साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਮੌਜੂਦ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਰਮਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿਣੀ ਯੱਕ ਨੇ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬੇਹਰਮਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ओ जी मसीह मऊ साहब ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਵੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਾਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਛੋੜੋ। ਔਰ ਨਸ ਤੂੰ ਬੰਦਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭੈਣ ਯੱਕਾ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਓਏ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਦਮਾਸ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਚੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ੋ। ਹੈ ਓਏ ਬਦਮਾਸ਼ੋ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਬਦਮਾਸ਼ੋ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਬੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੋ। ਬਦਮਾਸ਼ੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੋ। ਓਏ ਬਦਮਾਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਕਲੋ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸੇਲ 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 ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਰਾਸ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਲਈ ਏ? ਖੁਦ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਅੱਕੂ ਬਕਵਾਸ ਲਾਈ ਹੈ ਯਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੂਤਰਾ ਖਲੋ ਦੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਤੇ ਕਮੀਨਿਆ ਦਲਿਆ ਝੂੜੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਸੁਨਤ ਰੱਖੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਨਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨਾ ਟੀਆਰਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਲਾਨਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾ ਚੁੱਪ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਰੋਬੀਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਤੇ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਸ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਤੁਰ ਗਏ। ओए हाय अल्लामा साहब आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਕੋਲ। ਖਰਾਜੇ ਤਸੀਨ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੇ ਬਗੈਰਤ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿਲकुल ठीक। अच्छा जी लामा साहब कोई और गल करनी है तो कर लो नहीं तो फिर मैं बेहुरमती नहीं उलमा इकराम दी करवाना चाहता। नहीं नहीं तुसी तो उनके रखो मैं थल्ले ही हां कोई इशू नहीं कोई इशू बदतमीज हुंदे ने बड़ी कोई जज़ाकल्लाह। मैं जी अगले कॉलर नु चुकन लगा वां क्योंकि कादियानी साडे नाल बदतमीजी जिन्नी मर्जी करन नो टेंशन टेंशन ही कोई नहीं। ते ओ फिर साडे उलमा इकराम वो फिर अच्छी बात ने। कादियानियों किथे गए हो यार? मलक तलत अजे हुण आया सी ते टुर गए। तो टुर भी गए हैं यार किधर गए हैं? मलक किते थल्ले बह के तेरी सुनदा पिया तू तलत मलक इधर आ तेरी मैं तबलीग करावां तेरियां बैतां करावां इत्थे जल्दी जल्दी आ जा काल ते आ सुहेल। ए मुफ्ती साहब मर जा। तबलीग तो बढ़ गई है फिर पता लगता है मुफ्ती साहब आपके ऊपर रिपोर्ट लगी है। मैं कहता रिपोर्टां पै रही ने ते हुण दुकान बंद करन दी वारी आ गई है। दुकान बंद करिए रिपोर्टां पै रही ने। रिपोर्टां पै गईयां भाई रिपोर्टां हो गईयां भाई परचे कट गए ने भाई परचे हो गए भाई। निकलिए फिर दुकान बंद करके पोले पोले। चलो भाई रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जल्दी मिलते हैं ते मिर्जे कादियानी दी तंबी खोलने अगली बराड़ च ते जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो मैनू। अस्सलाम वालेकुम। मंजूर है प्यारे।